स्टूडेंट्स, हेलो क्लास। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का कुछ बेसिक सम्स करके देखेंगे जो हम लोग का एग्जाम्स पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ सम्स हम लोग सिलेक्ट किए हैं नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड, और हम लोग कुछ गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स का सम्स आज सॉल्व करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड विथ आवर फास्ट सम्स। ये सारे सम्स हम लोग का टी.एस. गेरीवाल के बुक से है, तो उसमें से हम लोग पहले एक इलास्ट्रेशन 18 कर रहे हैं। ओके, हम जस्ट एक बार क्वेश्चन को ओवरऑल व्यू देने के लिए देख रहे हैं। स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन देख पाओगे, जस्ट मेरे संग ही तुम लोग एक बार रिकैप करना क्वेश्चन को। तो रवि एंड टीकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% per annum and interest on drawing will be charged 4% per annum. Each partner will be given a salary of 1000 per month and partners will share profit and losses in the ratio 2:1. Following are the particulars of capital and drawings of the partners, and their opening capital for Ravi is 60,000 and for Tiku it's 50,000. Drawing, they made this drawing on 1st of June and amount of drawing is 3,000 and 6,000. Ravi had taken a loan of 10,000 from the firm. Now firm is providing loan to a partner on which interest of 200 was due by him to the firm. That means firm को उससे interest लेना है 200. Why? ना firm उसको loan दिया है तो firm को उससे interest मिलेगा. Next, the account for the year 2017-18 shows the firm had made a profit of 77,000 before taking into account any interest, salary and manager's commission of 18,000. You need to prepare, इसमें दो चीज़ पूछा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सम्स हम लोग लिए हैं IAC 2019 में, ये क्वेश्चन आया था। चलो लेट अस प्रोसीड विथ द सम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये ईयर एंडिंग में हम लोग जैसे बोलते हैं कि ईयर एंडिंग में ये बनता है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31st March of 2018। तो हेयर इज आवर PL appropriation account. This is your debit, credit. Now here is our particulars and amount, again particulars and amount in terms of rupees. Now come to our first line, interest on capital. So this is an expenses for the firm, तो यू सपोज टू राइट इन डेबिट साइड, तो लिखो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नाउ फॉर रवि इट्स 60,000, इंटरेस्ट रेट इज 5%, सो 3,000 इज इंटरेस्ट। नाउ फॉर सेकेंड पर्सन टीकू, हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 50,000, 5%, दिस इज 2,500. नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. Now for the firm, interest on drawing is an income. So you supposed to write in credit side as by interest on drawings. So now for Tiku, it's 3,000. Rate of interest is 4%. Now they have said this drawing they have made on June and our year ended on 31st March. So you have to calculate the number of months here. तुम्हारे यू ऑल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मंथ। तो कैसे नंबर ऑफ मंथ होगा ना, यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फॉर दिस इसमें हम लोग का 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सेम फॉर टीकू, ओ सॉरी दिस इज फॉर रवि, एंड नाउ फॉर टीकू इट्स 6,000 into 4%, for him also 10 by 12. This is how we supposed to calculate interest on drawings. Now come to your next part. Now they are saying you salary 1,000 per month. Now salary for this two salary
वी आर प्रोवाइडिंग सैलरी टू ईच पार्टनर. तो फॉर रवि 1000 इंटू 12, तो इट्स 12,000, एंड फॉर टिकू इट्स 1000 इंटू 12, that is also 12,000. Okay, now next they are saying you profit. We have earned a profit of 77,000. तो say this by profit and loss, this is our net profit. अभी हम लोग नेट प्रॉफिट को थोड़ा अंदर में लिख के रखेंगे बिकॉज इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी है. तो इसमें मैनेजर का कमीशन देना था 18,000, तो लेस मैनेजर्स कमीशन which is your 18,000, and they have said you last para mein Ravi had taken a loan of 10,000 for which interest is 2,000 was due by him to the firm. So interest on loan we need to add here interest on loan because firm supposed to get this interest. So now this is our sums, so we have to calculate right now. हम लोग को अभी कैलकुलेट करके दिखाना है. तो चलो लेट अस कैलकुलेट वंस. तो एट फर्स्ट 77,000 वी आर हैविंग मैनेजर्स कमीशन, डिडक्ट दैट एंड ऐड 200. तो दिस इज आवर 59,200 इज आवर करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. देयर आफ्टर हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखें तो 3,000 इंटू 4% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12. So here we are getting 100 rupees as interest on drawing, and for second person it would be 200. So this is your total of credit side. So now credit side total will be 59,200 plus 300. So this is your 59,500. So out of this 59,500, if these expenses are being deducted, अगर हम लोग ये सबको डिडक्ट करते हैं तब देखते हैं 12,000 and 12,000. So this is the amount of ultimate divisible profit. हम लोग बोले थे प्रीवियस क्लासेस में कि इसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के लिखते हैं, और इसी प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. फिर से एक बार क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग. देखो फोर्थ पॉइंट में हम लोग को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, एंड लास्ट पॉइंट में दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. तो अगर 2:1 है तो 2/3 एंड 1/3. तो दिस इज 20,000 फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट और सेकेंड का है 10,000. अभी ये था हम लोग का नॉर्मल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एग्जाम्पल. और एक चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है, हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है. तो पार्टनर्स कैपिटल के में कॉलम बनता है खाली 2 ठो बिकॉज 2 पार्टनर्स हैं. तो दिस इज योर R&D particulars, अगेन पार्टनर R&D, दिस इज पर्टिकुलर. नाउ जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल चालू करते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग को कोई पूछा गया था कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड से क्यों चालू होता है. उस दिन भी हम लोग एक बार डिस्कस किए थे कि पार्टनर्स कैपिटल फर्म की तरफ से सोचा जाए तो एक लाइबिलिटी है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल सब समय क्रेडिट साइड से बिगिन होता है बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस. तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इधर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के उन लोग का इनिशियल कैपिटल लिख के सम्स को प्रोसीड करते हैं. तो दिस इज योर 60,000 एंड 50,000. सब समय पहले ओपनिंग कैपिटल पुट कर देना. नेक्स्ट उसके बाद हम लोग उसको इंटरेस्ट, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हम लोग को पुट करना है. जैसे कि हम लोग हेयर वी हैव टू राइट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी दोनों का फिगर 3,000 एंड 2,500. फिर उसके बाद सैलरी, दोनों का फिगर अमाउंट इज 12,000 एंड 12,000. नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट हेयर वी कैन राइट PL एप्रोप्रिएशन ऑल्सो. तो दिस इज 20,000 एंड 10,000. तो इधर हम लोग का भी डेबिट में क्या क्या आएगा. डेबिट में फास्ट जो चीज़ आता है वो लोग का ड्राइंग्स. तो वो लोग कितना कितना ड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स
अकाउंट बोल के लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर हैव ड्रॉन 3000 एंड सेकेंड पार्टनर 4000 और उन लोग से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक जन का 100 और एक जन का 200। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्टनर्स कैपिटल। नाउ वी नीड टू क्लोज दिस। अभी हम लोग को ये क्लोज करना है। तो हम लोग का ये जब टोटल करेंगे हम लोग तब 95,000 दिख रहे हैं और ये हम लोग का दिख रहा है 74,500। तो इधर भी आया 95,000 एंड 74,500। तो हेयर द डिफरेंस इज से दिस बैलेंस कैरेड डाउन। अभी देखो ये बैलेंस सब समय लास्ट डेट में हम लोग का आएगा। तो 95,000 से अगर हम लोग 3100 डिडक्ट करें 91,900 एंड इसमें 74,500 से अगर 4200 डिडक्ट करें तो 70,300। देखो इस तरह से हम लोग को दो अकाउंट पूछा गया था इस सम्स में। 2019 में ये सम्स आया था। सिंपल हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो इस सम्स के लिए इतना ही। बट आज का वीडियो थोड़ा हम लोग का लेंदी होगा बिकॉज स्टूडेंट्स लोग का डिमांड है कि सर कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स आप करके दिखाओ। तो कुछ सम्स तो हम सिलेक्ट किए। ये था सम्स नंबर 1, 2019 में आया था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ सम्स देख रहे हैं। ओके, तो लेट अस प्रोसीड। तो नेक्स्ट सम्स हम लोग का इलस्ट्रेशन 30, ये भी टीएस गेरीवाल से। इसमें हम लोग का टॉपिक हेडिंग्स होगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी देता है। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है उस वैरायटी का एक क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए। तो देखो क्वेश्चन तो हम लोग का स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम रीड आउट कर रहे क्वेश्चन को। बोल रहे पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ under the partnership deed, interest to be charged at the rate of 15% per annum, and calculate interest that should be charged to the partner if the drawings are made in the beginning of each month, in the middle of each month, and at the end of each month. That means partner लोग 10,000 करके हर मंथ विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पस। तो अभी बोल रहे ये इंटरेस्ट कितना होगा अगर कोई हर मंथ के शुरू में विड्रॉ करे, हर मंथ के मिडिल में करे या तो हर मंथ के लास्ट में करे। तो हम लोग का कैलकुलेशन कैसे होगा देखो। पहले हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अभी हम लोग अगर देखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब हम लोग का 12,000 करके ड्राइंग्स, ईच मंथ मतलब इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं 15%। और हर मंथ के शुरू में कोई अगर विड्रॉ करता है तो कैलकुलेट होता है 6.5/12। ओके, और यही सेम चीज सेकेंड पार्ट में हम लोग को पूछा था एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तब जाके होगा तुम्हारा 12,000 इंटू 12, 15%, हर मंथ के मिडिल होने से 6/12। एंड लास्ट हम लोग का एट द एंड अगर रहे, एंड ऑफ ईच मंथ, तब जाके ड्राइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम इंटू 12 इंटू 15% और लास्ट इज योर 5.5/12। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मंथ के बिगिनिंग, मंथ के मिडल एंड मंथ के एंड एक बार कैलकुलेशन करके भी तुम लोग को दिखा देते हैं। तो पहले हम लोग का 12,000 इंटू 12 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। तो हेयर इट इज 11,700। Next one will be 12,000 into 12 into 15% into 6 divided by 12. So you will get 10,800. And last one is
12,000 into 12 into 15% into 5.5 divided by 12, तो दिस इज 9900। तो देखो दिस ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, तीन सिस्टम में ड्राइंग। नॉर्मली इसमें फुल फ्लेजेड सम्स आता नहीं है, बड़ा क्वेश्चन के अंदर ये डाला हुआ रह सकता है, या तो एमसीक्यूज या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछता है। ये हम लोग का सेकेंड सम्स था। लेट मूव टू थर्ड क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन 3 में जाएंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में से। तो जस्ट 1 2 कंप्लीट होने के बाद लेट अस बिगिन क्वेश्चन 3। तुम लोग हमेशा जैसे मेरे साथ सॉल्व करते हो, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग सब पेन कॉपी लेके मेरे संग संग सॉल्व करो। तो लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार आप लोग नोटिस करो। तो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 51 जो मेरे हिसाब से 3 है। नेहा एंड रमन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। As from 1st April 2019, they admit Chaman, who is to get 1/10 share of profit with a guaranteed minimum amount of 16,000। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखे थे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है कि कुछ भी प्रॉफिट हो जाए उसको इस अमाउंट का ऑब्वियसली मिलेगा ही, मतलब इस सम्स के हिसाब से 16,000 गारंटेड अमाउंट है, तो विच इज सपोज टू रिसीव। तो नेहा एंड रमन कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, और इस बार हम लोग का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को बना के दिखाना है। नॉर्मली इस टाइप के सम्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, 4 मार्क्स में दिया जाता है, जिसमें खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम लोग दिखाते हैं। चलो लेट अस कंटिन्यू। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिखाएंगे, और ईयर एंडिंग में, तो इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन, हम लोग की ईयर एंडिंग एज पर आवर क्वेश्चन 2020 था 31 मार्च में। तो हम लोग का पहले पार्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन हम लोग का पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो अभी हम लोग का नेट प्रॉफिट 1 लाख हुआ। तो व्हाट वी सपोज टू डू कि बाय पीएल बोल के हम लोग का नेट प्रॉफिट इज योर 1 लाख। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट फर्दर और है नहीं, तो वी सपोज टू डिवाइड दिस 1 लाख बिटवीन आवर पार्टनर। तो हेयर वी सपोज टू राइट कि ये हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम लोग का पार्टनर्स है नेहा, रमन एंड चमन। तो नाउ हाउ वी सपोज टू शेयर दिस प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे सब समय एक वर्किंग नोट कर लो सम्स को इजी बनाने के लिए। तो दिस इज माई शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि तीनों पार्टनर में हमको डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ था, सिंस 1 लाख ही होगा बिकॉज और कोई बीच में एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम लोग का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हम लोग पहले गारंटेड पार्टनर है सी, तो सी का हिस्सा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 1 लाख में उसको हम लोग बोले कि आपको गारंटी दे रहे 1/10, तो इसका अमाउंट ऑब्वियसली 10,000 होगा। बट टोटल अमाउंट अगर उसको गारंटी दिया गया था कि 16,000 उसका टोटल होना है। क्वेश्चन एक बार फॉलो करो स्टूडेंट्स कि 1/10 उसको हम लोग गारंटी दे रहे हैं, दैट मीन्स 1 लाख का 1/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और गारंटी दे रहे हैं हम लोग 16,000। तो 1/10 पहले निकाल के हम लोग 10,000 कर रहे हैं, और टोटल उसको 16,000 हम लोग गारंटी दे रहे हैं। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट इज 6,000, उसको हम लोग को एडजस्ट करना है पार्टनर्स लोग में, तो उसको लिख रहे हैं एडजस्टमेंट। अभी किससे कितना फार्म काटेगा 2:1 के रेशियो में, दैट इज 4,000 फर्स्ट पार्टनर से काटेगा और सेकेंड पार्टनर से 2,000 फार्म विल डिडक्ट, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, मतलब फार्म के पास थर्ड पार्टनर गारंटेड पार्टनर को देने के बाद जस्ट थिंक अबाउट फार्म के पास अभी कितना है 90,000, या तो तुम नीचे और एक बार लिख सकते हो कि रिमेनिंग प्रॉफिट 90,000 हम लोग के पास रिमेनिंग प्रॉफिट है, जिसको फार्म 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज 60,000 एंड 30,000। तो अल्टीमेटली इसको मिल रहे हैं 56,000,
इसको मिल रहा है 28,000। तो दीज आर देयर प्रॉफिट दैट वी सपोज टू एक्सप्रेस इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जस्ट किस तरह से करना है, लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट वंस मोर। टोटल फार्म के पास 1 लाख का प्रॉफिट था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 1 लाख का प्रॉफिट था, फार्म सी को पहले 10,000 इसमें से दे दिया, दैट मीन्स 1 लाख का अगर हम लोग करते हैं 110 तो 10,000 दे दिया। तो फार्म के पास देने के बाद जो हम लोग के पास प्रॉफिट बचता है दैट इज रिमेनिंग अमाउंट विच इज योर 90,000। तो फार्म उस 90,000 को रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड करता है। फिर सिंस उसको 10,000 दिए और देना था गारंटेड अमाउंट 16,000, तो जो 6,000 रिमेनिंग है वो फार्म दोनों जन से काट लेगा। मतलब ये जो 60 और ये जो 30 ये लोग को मिल रहा है उसी में से काट के एडजस्ट करके फार्म उसका नेट अमाउंट दिखाएगा और उसी को इधर पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करेगा। ये था हम लोग का सम्स नंबर 3। चलो अभी मूव करते हैं हम लोग सम्स नंबर 4 में। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सिंस स्टूडेंट लोग का बहुत सारा सम्स का डिमांड्स आ रहा है तो डिफरेंट टाइप के सम्स वो लोग बोल रहे हैं कि सर करके दिखाओ। तो और एक सम्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट से ही। बट पिछला सम्स में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस क्या होगा, उसमें फर्म गारंटी दिया था और इसमें पार्टनर लोग गारंटी देगा। तो फर्म जब गारंटी दिया तब हम लोग क्या देखें ना, थर्ड पार्टनर जो गारंटेड पार्टनर था उसका हिस्सा उसको पहले दे दिए, फिर रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो बाकी पार्टनर्स में डिवाइड किए और जितना शॉर्टफॉल हुआ वो बाकी पार्टनर से डिडक्ट किए। तो इसमें लिटिल बिट वर्किंग नोट में डिफरेंस आएगा। चलो देखते हैं एक बार कैसे इसका होता है। तो पहले बोल रहे देखो अनुपम, वीरेंद्र एंड चंदर आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। Now Chandar is given guaranteed that his share of profit in a year would be 50,000. Deficiency, if any, would be borne by Anupam and Bhupinder equally. That means जितना हम लोग को चंदर को हम लोग कम देंगे, बाकी दो पार्टनर इक्वली उस डेफिशिएंसी को डिवाइड करेगा। नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है 4 लाख। तो अभी देखो इसमें भी हम लोग को पूछ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो एक बार हम लोग जर्नल करने के पहले वर्किंग नोट करके देख लेते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का। शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो अभी हम लोग के पास 3 पार्टनर ए, बी एंड सी। तो पहले हम लोग इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों जन को पहले दे देते हैं एज पर देयर रेशियो। दैट इज योर 4 लाख अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो इसमें हम लोग का 5:4:1 that is 10 total. So this will be 2 lakh and this will be 40,000 and this is 1,60,000. अभी चमन को तो हम लोग गारंटी दिए थे कि चंद्रा को गारंटी दिए थे हम लोग आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 50,000 होगा, तो डेफिशिएंसी हो गया तुम्हारा 10,000। तो इसको बोलेंगे हम लोग डेफिशिएंसी, या तो आप लोग इसको एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हो। बाकी पार्टनर इक्वली इसको गारंटी दिया था तो 5,000 एंड 5,000 दोनों में से डिडक्ट किया जाएगा। तो आई कैन से हिज शेयर विल बी 1,95,000 एंड दिस इज 1,55,000। ओके, तो अभी हम लोग को जर्नल एंट्रीज पूछा गया है। तो जर्नल एंट्रीज अभी कैसे करेंगे, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टोटल 4 lakh and divide this between our partner. Say this A's capital, B's capital. I am not writing the full name, हम खाली दे रहे A, B and C। तो ये लोग को मिल रहा है 2 lakh, 1,60,000 एंड 40,000। पहले वो लोग को अपना अपना हिस्सा का प्रॉफिट दे दो। नेक्स्ट उसके बाद ये एडजस्टमेंट दैट इज डेफिशिएंसी का एक एंट्री पास करना है। तो सी को फर्दर हम लोग को देना है और 10,000, तो क्रेडिट करेंगे 10,000 और डेबिट करेंगे बाकी दो पार्टनर्स का एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड हम लोग का बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 5,000 एंड 5,000। बस these 2 journals we need to do for
दिस टाइप ऑफ गारंटेड ऑफ प्रॉफिट। जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी देता है तब हम लोग पहले एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे, देखेंगे क्या प्रॉफिट है, दे विल गिव यू, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले सब जन में डिवाइड कर दो। फिर सोचो गारंटेड पार्टनर कौन है, सी को गारंटी कितना दिया गया था, दे विल प्रोवाइड यू इन योर क्वेश्चन। तो जिससे माइनस करके कितना डेफिशिएंसी है उसको पहले निकालो, उस डेफिशिएंसी को इन लोग का जो प्री प्लान्ड रेशियो था कि कैसे डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे, इस सम्स में बोला था इक्वली, तो दोनों जन से इक्वली डिडक्ट करो और फिर यू विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग। तो जो अमाउंट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं उसी का हम लोग जर्नल कर रहे हैं। पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन से तीनों जन को पहले दे दो, फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट करो कि आपको जो 10,000 और देना है बाकी दो पार्टनर से हम लोग डिडक्ट किए। इतना ही सिंपल है। तुम लोग का डिमांड था कि सर सिंपल लैंग्वेज में आप समझाते हो तो एग्जाम्पल में भी सिंपल लैंग्वेज ही यूज करना, सिंपल वे ऑफ डूइंग यूज करना। तो हम लोग ये सब वैराइटीज टीएस गेरीवाल से ही लिए, कभी कभी डीके गोयल से लेते हैं। तो इतना सिंपल वे से आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जैसे हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे पहले वर्किंग नोट फिर जर्नल, तो इस हिसाब से ही तुम लोग एग्जाम में भी करना। आई थिंक ये तुम्हें हेल्पफुल होगा। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स में जाते हैं। चलो हम लोग तब आज फोर्थ सम्स हम एक बार देख रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट में से। स्क्रीन में हम लोग का नेक्स्ट सम्स आ रहा है, आप लोग एक बार नोटिस करो। अभी इस सम्स का एक बार फीचर्स आपको बोलते हैं। फीचर्स ऐसा है, कभी हम लोग का अगर हाफ ईयर का सम्स थे, मतलब पूरा डीट्स हम लोग अगर पढ़े, पूरा सम्स का डीट अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग पढ़ के देख रहे कि हाफ ईयर का हम लोग को सम्स बनाना है, तो किस तरह से इसका इफेक्ट होगा, कैलकुलेशन होगा, इस फीचर्स में हम इस सम्स के फीचर्स में देखेंगे। तो नोटिस करो, बोल रहे देव, करण एंड विवेक entered into partnership on 1st October of 2019 to share profit in the ratio 4:3:3. Dev personally guaranteed that Vivek's share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum. That means अभी देव को पर्सनली गारंटी दे रहे, देव पर्सनली गारंटी दे रहे कि विवेक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कोई भी ईयर में 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तीनों पार्टनर का दे दिया है और प्रॉफिट इस बार हुआ है 31 मार्च 2020 में 4 लाख। तो ये भी एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ही सम्स है। चलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अभी हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ कि बाय पीएल हम लोग का इस बार नेट प्रॉफिट हुआ है विच इज योर 4 लाख। और नोटिस करना ये सम्स चालू हुआ था 1 अक्टूबर ऑफ 2019 और ईयर एंडिंग चल रहा है 31 मार्च ऑफ 20। तो डेट देख के पता चला कि ये 6 मंथ्स का सम्स है, 6 मंथ्स ड्यूरेशन है। तो हम लोग को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम लोग को डी को बोलेंगे कि 7,50,000 उसका कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 10% है और 6/12 बिकॉज 6 मंथ्स का सम्स है। फिर के लिए भी इंटरेस्ट निकालने के लिए 5 लाख जिसके ऊपर 10%, तो 6/12। और नेक्स्ट इज योर वी जिसके लिए कैपिटल है 3,75,000 और इसको भी 10% करेंगे और 6 मंथ्स के लिए। तो पहले एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो तो नॉर्मली हम लोग का 7,50,000 का 10% 75,000 तो 37,500। नेक्स्ट इज योर 25,000 एंड लास्ट वन इज योर 37,500 10% हुआ तो 18,750। तो इसी को देख के हम लोग एक बार शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले निकालते हैं। दिस इज टोटल 4 लाख, इधर भी आएगा टोटल हम लोग का 4 लाख और जो डिफरेंस हम लोग का आएगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है देखो, अगर हम लोग 4 लाख में से डिडक्ट करते 37,500 फिर 25,000 एंड फिर 18,750 तो वी आर हैविंग 3,18,750।
अभी इसको हमको डी, के और वी में डिवाइड करना है। अभी हम लोग के सम्स में एक बार क्वेश्चन में फिर से आप लोग रिटर्न बैक करो। देखो हम लोग को डी को बोला गया था कि आपको डी बोला था कि विवेक का शेयर आपका 2 लाख कोई भी तरह से होना ही चाहिए। तो अभी हम लोग एक वर्किंग नोट जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। तो डी, के और वी के लिए तो पहले हम लोग एक बार शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग के पास अगर 3,18,750 है, हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। पहले डिवाइड करके सब समय तुम लोग पहले देख लेना कि क्या क्या प्रॉफिट ये लोग का आ रहा है। तो डिवाइडेड बाई हम लोग अगर 10 करते हैं इंटू 3, तो दिस इज योर 95,625, 95,625। और इसके लिए होगा तुम्हारा इंटू 4, तो 1,27,500। अभी हम लोग का सम्स में दिया था कि ये गारंटेड पार्टनर है तुम्हारा विवेक। तो लास्ट पार्टनर हम लोग का गारंटेड पार्टनर है। बट नोटिस करो इसमें उसको गारंटी दिया गया था कि 2 लाख इन अ ईयर। तो हम क्या इधर बोल सकते हैं, अगर 2 लाख किसी को साल भर में देने का बात था, तो अगर 6 मंथ्स का ही अभी सम्स हो रहे हैं, तो 6 मंथ्स में उसको 1 लाख देना चाहिए। मतलब उसका गारंटेड अमाउंट हम लोग को 1 लाख पुट करना है। मतलब टोटल 2 लाख उसका गारंटेड अमाउंट है अगर पूरा साल बिजनेस रन हुआ। बट सिंस इसमें हम लोग का सम 6 मंथ्स के लिए है, इस सम्स का वही फीचर था, 6 मंथ्स का सम्स में उसका अमाउंट तुम्हारा 1 लाख होना चाहिए। अभी ये 1 लाख और 95,625 का एक डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो एक डिफरेंस देखो, तो दिस इज योर 1 लाख माइनस 95,625, तो 4,375। अभी ये देव ने गारंटी दिया था, तो फार्म उससे डिडक्ट करेगा या तो उससे एडजस्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोग के लिए ये 95,625 हुआ, और इसमें हम लोग 127,500 में से माइनस करेंगे 4,375, तो 123,125। तो ये लोग का अमाउंट इधर आके बैठेगा। तो दीज आर माई आंसर्स। तो दिस इज योर 1 लाख। क्लियर? तो इस सम्स का तब फीचर्स क्या हुआ और एक बार जस्ट समझा दे रहे, रिकैप दे देते हैं। तो नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया था 6 मंथ्स के लिए ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला था 10%, बट 10% पर एनम था, तो साल भर के लिए 10%। तो हम लोग इसलिए सभी को 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे दिए। फिर नॉर्मल वे से निकाल लिए 4 लाख में से इंटरेस्ट डिडक्ट होने से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। अभी इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। सिंस गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, तो फट से यहां नहीं लिख के हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट को वर्किंग नोट में हम लोग पहले पुट किए। फिर सोचे कि लास्ट पार्टनर गारंटेड पार्टनर था और उसको गारंटी दे रहे देव में, तो इधर गारंटेड अमाउंट कितना था, सम्स में बोला था हम लोग विवेक को गारंटी दे रहे 2 लाख, बट साल भर के लिए 2 लाख। बट सिंस ये सम्स हम लोग का खाली 6 मंथ्स के लिए है, इसलिए हम लोग 6 मंथ्स का अमाउंट यहाँ पुट कर रहे कि 1 लाख। तो इतना अगर गारंटेड है, तो बाकी जितना डेफिशिएंसी हुआ उतना उसको देना है। पर्सनली देव गारंटी दिया था, इसलिए देव से माइनस हुआ करके जो फिगर्स हम लोग का आया उसी को जाके पुट किए, तो हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। एक्सपेक्टेड कि ये तुम लोग को समझ में आया। मेरे संग संग हमेशा करते चलो, देखो क्लियर हो जाएगा। चलो पीएल एप्रोप्रिएशन का पास्ट एडजस्टमेंट्स का आज हम लोग लास्ट सम्स करेंगे। तो पिछला जो सम्स हम लोग किए थे, एक्सपेक्टेड कि तुम लोग का उसमें डाउट्स और कुछ नहीं है। अगर डाउट्स हुआ तो ऑब्वियसली हमको पिन करना, सब समय तुम लोग का पॉल सर तुम लोग के संग है। तो चलो एक बार आज के लिए लास्ट सम्स रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो अभी हम लोग का देखो संजीव, राजीव एंड कशिप आर पार्टनर्स। Their current account on 1st April 2019 were Sanjeev 50,000, Rajiv 1 lakh and Kaship 50,000। और इस बार प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2020 में 60,000 was credited to their current account। मतलब प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट ये लोग उसके current account में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वाज क्रेडिटेड 10% पर एनम। मतलब पार्टनर्स लोग को इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हम लोग 10% ऑलरेडी दे चुके हैं। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस मोर, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वाज क्रेडिटेड एट द रेट 10%, मतलब हम लोग ने ऑलरेडी 10% पार्टनर को दे दिए, और इंस्टीड ऑफ 12%, मतलब एक्चुअल देना था 12%। चलो इस वैरायटी के सम्स कैसा होगा, मतलब कोई रेट में हम लोग दिए थे बट एक्चुअल और कोई रेट में देना था, तो गलती से जो रेट से हम लोग इंटरेस्ट उसको दे देते हैं वो वापस लेंगे, और जो करेक्ट रेट में देना चाहिए वो लोग को देंगे, करके एक बैलेंस लाएंगे, उस बैलेंस से सम्स बनेगा। तो चलो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए थोड़ा सा जगह रख के इसमें हम लोग पहले वर्किंग नोट एक कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट में जाते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग का वर्किंग नोट, तो पहले हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हेडिंग दे देना कैलकुलेशन फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग का पार्टनर था SRK, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन करेंट ये लोग को 12% के रेट में देना था, तो पहले हम लोग उसको 12% के रेट में देंगे, और गलती से हम लोग जो रॉन्ग इंटरेस्ट उसको दे दिए थे, तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन करेंट जो कि 10% पर एनम में वो लोग को दे दिए थे, तो जो गलत दिए वो लोग से काट लेंगे। ओके, तो सब समय ध्यान में रखना, जो गलत हुआ है वो उससे काटना है और सही इंटरेस्ट उसको देना है। तो हम लोग को 12% के रेट में अगर देते हैं तो 50,000 का 12%, फिर 1 लाख का 12% एंड 1,50,000 का 12%। तो ये सब करेक्ट फिगर्स है, और रॉन्गली हम लोग दिए थे 10%, मतलब उससे काटेंगे 5,000, इससे काटेंगे 10,000 और इससे काटेंगे 15,000। तो अगर हम लोग का बैलेंस देखें तो ये हुआ पॉजिटिव में 1,000, ये हुआ पॉजिटिव में 2,000 और ये हुआ नेगेटिव में 3,000। अभी देखो तब नेट मिस्टेक कितना का हुआ था, अगर हम लोग देखें तो नेट मिस्टेक हम लोग का हुआ था तो हम लोग किस तरह से अभी सोचेंगे, देखो इसको तब हम लोग नेगेटिव में आया, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका नेगेटिव होता है, हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का बहुत सारा सम्स में समझे थे, उसको डेबिट करना है, मतलब हम लोग उसको एक्स्ट्रा कुछ दे दिए थे, उससे काटना है, और जे लोग का पॉजिटिव दिख रहा है उसको हम लोग और देंगे। दैट मीन्स इस सम्स के हिसाब से के से काटना है तो केस करेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, वो भी 3,000 से, और एस को हम लोग क्रेडिट करेंगे करेंट अकाउंट विद ₹1,000, एंड आर को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे विच इज योर 2,000। तो इसमें हम लोग नरेशन लिखेंगे कि बीइंग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नाउ एडजस्टेड। तो ये था हम लोग का एक सिंपल सा सम्स, जब रॉन्ग इंटरेस्ट के रेट से हम लोग सम्स करते हैं। तो एक बार और रिकैप देते हैं, पहले हम लोग का डीड के हिसाब से वहां 12% इंटरेस्ट रेट देना था। सम्स को पहले पढ़ लो, पहले देख लो कि कितना इंटरेस्ट रेट सही है, सही चीज को पहले पुट करो 12% के रेट में, और गलती से जो दे दिए थे वो उससे डिडक्ट करो, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन करेंट बोल के सब में से डिडक्ट करो, तो हम लोग का एक बैलेंस आएगा। तो उसी बैलेंस से अभी एक जर्नल पास करना है। ध्यान रखना, जिसका नेगेटिव आया दैट मीन्स फार्म उसको ज़्यादा दे दिया था, तो उससे अभी काटना है, इसलिए डेबिट, और जो लोग का पॉजिटिव आया फार्म उसको और देगा, इसलिए फार्म उसको क्रेडिट करेगा। तो ये था हम लोग का सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट। डिफरेंट टाइप के सम्स हम लोग किए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सम्स हम लोग किए, फार्म गारंटी देने से क्या होगा, पार्टनर गारंटी देने से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंट का रेट और कोई हिसाब से सम्स कर दिया। तो डिफरेंट टाइप के सम्स हम लोग कवर किए हम लोग के क्लास में। तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू करो। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हम लोग स्क्रीन में दिखाते हैं उस क्वेश्चंस को स्टॉप करके धीरे धीरे करके पढ़ो, और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है एक बार आप लोग देखो।
कोई भी डाउट हो एकदम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर